પછી ધર્મેન્દ્રભાઈ એ આપણા ફરાજીભાઈના નેવ્યુ છે, ભત્રીજા છે. પછી એમના સન છે વિજયભાઈ, એમના પુત્ર અજયભાઈ, પછી ખૂબ સરસ વાયોલિન વગાડે છે એ દેવ નારાયણભાઈ, ભરાજીભાઈના ભાઈ અશોકભાઈ. ભરાજીભાઈ આવે એ પહેલા લેટ મી ઇન્ટ્રોડ્યુસ આપ બધાને અંબાબેન. અંબાબેન, if you can please stand up. Really, please. એમનું એ પ્રોફેસર છે, એમનું ખરું અમેરિકન નેમ છે ડોક્ટર સારા કોલ્ડવેલ, અને એમને એમના ગુરુ હતા સ્વામી મુક્તાનંદા, ને એમણે એમને આ અંબાબેન નામ આપ્યું હતું ને એમણે એ નામ સ્વીકાર્યું છે. અને અમે જ્યારે એને સારા કહીએ તો એને ગમતું નથી કે મને અંબાબેન તરીકે જ બોલાવવાનું. અને ખાસ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એ રહી છે ઈસ્ટ કોસ્ટમાં, પણ ખાસ પ્રહલાદજી અને એમના ગ્રુપની સાથે સાન ફ્રાન્સિસ્કોથી અહીંયા ડ્રાઈવ કરીને એ ખાસ આવ્યા તે બદલ એમનો રિયલી ખૂબ 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 થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે આપણે પ્રહલાદજીભાઈ ટીપાનિયા, આપણા વલ્લભ મામા નથી આ સ્કીમ કે એમની જરા ઓળખ આપશે. વલ્લભ મામા. આજના મુખ્ય અતિથિ શ્રીમાન પ્રહલાદસિંહ ટીપાલિયા અને એના સાથીઓ, સ્નેહી મિત્રો, રામ કબીરના જલ વડે વંદન કરું છું. રામ કબીરના જલ વડે વંદન કરું છું. શબ્દો કાગળ પર લખી ચંદન કરું છું. એક બે મધુરા શબ્દો છે પુષ્પ ચડાવી, એક બે મધુરા શબ્દોના પુષ્પ ચડાવી આજના મુખ્ય મહેમાન પ્રહલાદસિંહનું અને એમના મંડળના સૌ સભ્યોનું સાથે સાથે આપ સૌનું સ્વાગત કરું. આજની ભજન મહેફિલમાં પૂજ્ય પ્રહલાદજી મંદિરના સભાગૃહમાં આજ પહેલા 2 વખત આવી ગયા છે, અને આજે ફરીથી નિરંજનભાઈના સાથ અને સહકારથી આ મહેફિલનું આયોજન થયું છે. એટલે એ બધાનો આભાર પ્રણ. હવે હું પ્રહલાદજીના જીવન પર પ્રકાશ પાડીશ. એમનો જન્મ 1954માં લુણિયાખેડી પિતા આત્મારામજી અને માતા સંપટબાઈને ત્યાં થયો હતો. એમના પિતાશ્રીની આર્થિક સ્થિતિ સારી ન હતી અને એમણે અક્ષર જ્ઞાનનો અભાવ હતો. એમના માતા પિતા ભણેલા ન હતા, પણ એમના મસાળમાં નાના નાનીને ત્યાં જઈને અક્ષર જ્ઞાન મેળવ્યું, અને એટલું મેળવ્યું કે તેમણે એમએની અંદર હિસ્ટ્રીની અંદર એમએ થયા. 24 વર્ષની ઉંમરે ગામની ભજન મંડળીમાં સામેલ થયા અને કબીરના ભજનનો સમય જતા એ પ્રણેતા બની ગયા. પ્રેક્ષકને ભજનની સમક્ષ પોતાની લાક્ષણિક શૈલીમાં એમણે પોતાના ભજનો ગાયા. 1980ની અંદર ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો ઉપરથી એમણે પહેલો પ્રોગ્રામ આપ્યો હતો. ત્યાર પછી તો ભોપાલ, જલાલપુરા, પટના, લખનઉ વગેરે અનેક સ્ટેશનો ઉપરથી એમનો અવાજ પ્રસારિત થયો હતો. 2003માં લંડન અને 2009માં અમેરિકામાં લિન્ડા હેસ, તમે તમને જાણતા જશો, લિન્ડા હેસ કે જો સ્ટેનફોર્ડ યુનિવર્સિટીની અંદર પ્રોફેસર છે અને એણે પ્રોફેસર તરીકે ફરજ બજાવે છે. એમના આગેવાન હેઠળ
અમેરિકાની બધી જ યુનિવર્સિટીની અંદર એક કબીરના ભજનોનો રમઝટ બોલાવી છે. એ માટે તમારે યુટ્યુબ ઉપર જોશો તો તમને 15થી 20 કલાક સુધી એમના પ્રોગ્રામો તમે સાંભળી શકશો. હવે એમને એવોર્ડની વાત કરું. એક એવોર્ડ એને કે માલવા રત્ન, શ્રેષ્ઠ કલા આચાર્ય મધ્યપ્રદેશમાં શ્રેષ્ઠ કલા આચાર્ય, અને સમાપ્તિ છે સંગીત નાટક એકેડેમી એવોર્ડ, અને હાલને તબક્કે પદ્મશ્રી એવા ભારત સરકાર તરફથી અર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. 1997માં કબીર સ્મારક સેવા શોધ સંસ્થાની સ્થાપના કરી છે. વિચાર કરો આપ, એક વ્યક્તિ શું કરી જાય છે તે આ એક દાખલો આપણી સામે છે. અને 2011માં લુણિયાખેડીમાં બાળકોની એક સ્કૂલ બી શરૂ કરી છે. એ અત્યારે હાલમાં મેઇન ટીચર તરીકે બી ત્યાં કામ કરે છે. આ છે એમના જીવનની થોડોક પ્રકાશ આપું. વધુ ન કહેતા એટલું જ કહીશ कि माननीय प्रहलाद जी, आप हमारे मंदिर में अपना भजन संध्या ने उजागर करशो. जाजू न कहता તમે આવ્યા છો તો આ મંદિર હરખાઈ જશે, તમે આવ્યા છો તો આ મંદિર હરખાઈ જશે, તમે જામ્યા તો જામ બધા છલકાઈ જશે. જરા થોભો જુઓ થોડી વાર, જરા થોભો જુઓ થોડી સી વાર, હમણાં આખી હવા ફેલાઈ જશે, આખી હવા ફેલાઈ જશે. હવે જાજુ ન કહેતા, તમારો टाइम वो ना ले. मित्रों, हम सब खुदा के वेटिंग रूम में बैठा हुए मुसाफिर है. हाँ मित्रों, हम सब खुदा के वेटिंग रूम में बैठा हुए मुसाफिर है. कबीर के नाम पे, कबीर के नाम पे आपसे मुलाकात हुई, कबीर के नाम से आपसे मुलाकात हुई. तो ऐसी तरह कहीं भी हम फिर इसी तरह से हमें फिर मिलेंगे. तब तक के लिए राम कबीर. Okay, thank you, Wala Mama. Very good. હવે પ્રહલાદજી, આપણે you can start the program. ऐसा होना चाहिए कि कम से कम सब ठीक से सुन सके. बस ठीक है. तो सबसे पहले तो सदगुरु के और आप सबके चरणों में शाही बंदगी राम कबीर, जो आपको अच्छा लगे. ये मेरी खुशकिस्मती है कि सदगुरु कबीर के पदों की वजह से, सदगुरु कबीर के भजनों की वजह से आप सभी
सदगुरु के और उस रूहानियत तालीम से जुड़े हुए जीवात्माओं के दर्शन करने का अवसर मिला, ये हमारी खुशकिस्मती और सौभाग्य है। वैसे कबीर साहब को हम किसी आकार प्रकार या एक सीमा में नहीं बांध सकते, ये मेरा सोच है। क्योंकि कबीर को हम किसी एक दायरे में, चाहे वो कबीर पंथ हो, चाहे वो भक्त समाज हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, जैन, चाहे पारसी हो, क्योंकि कबीर एक धारा है, कबीर एक विचार है, कबीर एक अनुभूति है, कबीर एक एहसास है जो हर इंसान के जीवन में संभव है। सदगुरु कबीर एक ऐसी रूहानियत तालीम हुई जिसने पूरे कायनात के हित और हिफाजत की बात करी और बात ही नहीं करे काम किया। इसीलिए उनको पीर भी कहा जाता है, उनको फकीर भी कहा जाता है, उनको संत और सदगुरु भी कहा जाता है। और उन्हीं के लफ्जों में कहते हैं कि कबीर सोई पीर है और जो जाने पर पीर, और जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। इसलिए आज इस राम कबीर मंदिर में सदगुरु कबीर की वजह से हम और आप मिले, ये हमारी खुशकिस्मती है। और आज का मिलना निश्चित रूप से हम सबके लेखे में लिखाएगा, क्योंकि ये मिलना ही पक्का है और बाकी का दूसरा मिलना क्षणिक होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सर्वर तरवर संत जना और चौथा बरसे में और परमारथ के कारणे विचारों धारी दे। आप सभी को मैं हृदय से इसलिए साधुवाद ज्ञापित करूं, जितने भी कबीर भक्त समाज है, कि उन्होंने कबीर की उस परंपरा को इस तरह से आत्मसात और जिंदा रख करके यहाँ अमेरिका जैसी जगहों पर भी अभी तक इतना कायम रख करके उसको इतना बढ़ा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर कबीर के बारे में जानना और उसको समझना ना के बराबर है। जितनी यूनिवर्सिटी में हमने कार्यक्रम किए, चूंकि पिछले 2003 में आए थे, तो लिंडा जी ने, चूंकि वो कबीर की स्कॉलर रही हैं, उन्होंने PhD किया और उन्हीं के मार्फत जब 2003 में आए तो पहली बार जब हमने इस तरह से गाया तो यहाँ पर हिंदी तो दूर की बात है, तो मालूम क्या जानेंगे, सब अंग्रेजी जानते, परंतु कबीर साहब के शब्दों की ऐसी चोट लगी कि जो लोग कहते थे कि हमें भाषा समझ में नहीं है परंतु अंतर में कुछ हुआ। तो कबीर की जो वाणी है, कबीर का जो संदेश है, वो अंतर में चोट करने वाला है। तो इस वजह से उस तालीम को आप सब ने इतना संजो करके, इतना समाहित रख करके जो यहाँ रखा है, इसके लिए आप निश्चित रूप से सभी साधुवाद के पात्र हैं। हम क्योंकि कबीर साहब ने इस मानव समाज में जितनी भी रूढ़ी, जितना भी अंधविश्वास, जितनी भी नासमझियाँ, जितने भी दूरियां किसी न किसी कारण से हुई, उसको उन्हें अनुभव करने के बाद में दूर करने का प्रयास किया, आप सब जानते हैं। और इसीलिए उन्होंने किसी एक वर्ग विशेष की हिफाजत की बात नहीं करी। कबीर कहते हैं कि कबीर खड़े बाजार में और सबकी चाहे खेल, और ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। जिस इंसान के विचार और जिस इंसान की अवधारणा इस किस्म की हो, वो किसी दायरे की बात कैसे कर सकता है। ये चिंतन विषय है, ये खोजने का विषय है, विचार करने का विषय है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं शुरुआती दरमियान में इसी तरह से गाना बजाना, जिसके मार्फत कम से कम आप इकट्ठे हो जाएं, और इस गाने बजाने के मार्फत इस नाद के साथ ही साथ हम अपने अंतर के नाद से भी जुड़ जाएं, एक ये भी जरिया है। और इसीलिए वर्तमान समय में कबीर का संदेश या और ऐसे जो संत पीर फकीर औलिया हुए हैं, उनके संदेश पूरे दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा जाने की जरूरत है, ताकि हमारे बीच में जो ये दूरियां हैं, हमारे बीच में जो किसी न किसी प्रकार की दीवारें खड़ी हो गई हैं, वो दूर हो सके। और वो जरिया है प्रेम का, सद्भाव का। अन्यथा आप और हम सबका जो शरीर है एक दिन चला जाएगा, सब जाते हैं, सब जानते हैं। जैसे ठाकुर भाई साहब
का शरीर छूट गया, हमारा भी छूटेगा। परंतु आप ये भी सब जानते हैं कि जीवात्मा कभी मरती नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं कि देह मरे जीव अमर है, और पार ब्रह्म है सोए, और अज्ञानी भटकर फिरे लखे सुज्ञानी होए। इसलिए उनकी आत्मा तो अमर है, उनकी चेतना, उनकी जागृति, उनका सेंट, उनका इशारा हमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं मिलता रहेगा। जिस तरह से सदगुरु कबीर का संदेश इतने सालों के बाद में आज भी उतना ही सबके अंतर में बसा हुआ है और हमेशा रहेगा, उसी तरह से जीवात्माओं का चेतना, उनका सेंट, उनका इशारा आप और हम सबके लिए अनुकरणीय है और रहता है। इसलिए मैं पुनः उस जीवात्मा को जो अमर है उसको एक अपने शब्द रूपी श्रद्धांजलि आप और हम सबकी ओर से प्रेषित करता हूँ। और आप जैसे गुरुजनों, क्योंकि गुरु कोई विशेष व्यक्ति विशेष नहीं होता है, गुरु तो सबके अंतर में है, कबीर साहब कहते हैं। और इसलिए आप सब गुरुजनों को हम नमस्कार करते हैं। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम गुरु वंदना से ही करेंगे। और जो इंसान गुरु के चरणों में रहा, जो इंसान गुरु के चरणों में रहा नहीं, उसे हर बार एक नया नया एहसास होगा, हर बार एक नया नया अनुभव होगा। और अनुभव गुरु है, ये सदगुरु कबीर कहते हैं। सदगुरु कबीर की एक साखी आपको याद होगी कि ये सब गुरु हैं हद के, बेहद के गुरु नहीं, और बेहद अपने आप उपजे अनुभव के घर माही। और अनुभव, एक्सपीरियंस, वो ही एक प्रकार का गुरुत्व है। और गुरुत्वाकर्षण बल, चूंकि आप बहुत पढ़े लिखे और विज्ञान के जानने वाले हैं, वो स्थिति जो शून्य की स्थिति पैदा होती है, जहां पर बिल्कुल खालीपन होकर के हल्कापन हो जाता है, ये आप और हम सबके जीवन में आने की जरूरत है। और ये तब आएगा जब हम सदगुरु कबीर की वाणी को व्यावहारिक रूप में अपने जीवन में उतारेंगे तब। इसलिए इसी तरह का एक भजन है सदगुरु कबीर का कि गुरु जी के चरणों में घुल जा रे बंदे, रहना रे बंदे, नित नई खबर पड़े। हर बार नया नया अनुभव होगा, हर बार नई नई खबर होगी। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए वो ये कहते हैं कि थारी नाभि, हर इंसान के नाभि से जो श्वास की उत्पत्ति होती है, तू तेरा ध्यान वहां पर लगा। क्योंकि योग के सदगुरु कबीर को योगजीत जी भी कहते हैं। तो इस वजह से इस प्रक्रिया को, अब ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये कोई मजहब की बात नहीं है, सबके अंदर होने वाली घटना है। पर ये तब होगा जब शून्य की स्थिति में आकर के हमें वो नूर सबके अंदर एक जैसा दिखाई दे, तब कहीं बात बने। और यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि सब घट मोरा साइया सुनी से न हुई, बलिहारी व घट की जागट प्रगट हुई। आप सब घटों को नमन है कि कबीर साहब के प्रति वो अनुराग, वो प्रेम, वो सद्भाव जागृत है और उसको आपने उसको जिंदा बनाए रखा है। इसलिए इस भजन के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति में पूजा, मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरुकृपा। क्यों गुरु की कृपा? क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजे, गुरु बिन ज्ञान नहीं उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। यदि गुरु बिन लगे कोई सत्य को, तो गुरु बिन मिटे न दोष। बिना गुरु के दोष, कमी, खामी दूर नहीं होगी। परंतु ये तब होगा जब हम गुरु की अटपटी बात को झटपट लख लें, परख लें, देख लें, उसका एहसास कर लें। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसी गुरु की वाणी अटपटी और झटपट लखी न जाए। अरे जो जन झटपट लखी लगे, वही झटपट ही मिट जाए। इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि है।
इसलिए सदगुरु सर्वोपरि है। कितने 7 दीप 9 खंड में और गुरु से बड़ा नहीं को, करता तो कछु कर न सके पर गुरु करे सो। इसलिए गुरु के चरणों में, इसलिए गुरु के शरणों में आप और हम सब जुड़े रहे, मानव मात्र जुड़ा रहे। और गुरु के चरणों और गुरु के शरणों में जुड़ने का मैं सोचता हूँ, उनकी सेन का, उनके इशारे का, उन नाम का, उन धुन का, उन शब्द के साथ में जुड़ना ही गुरु के चरणों में रहना है। उस सेन के साथ जुड़ना ही गुरु की आराधना है। और वो सेन, वो नाम, वो धुन, वो शब्द सब इंसान के अंदर हमेशा है। उसका एहसास कैसे हो, इसलिए सदगुरु कबीर इस पद में इस तरह से कहते हैं। हमारी इंद्रियां अनेक प्रकार के विषयों में दिख गई तो ठीक नहीं, उसका एहसास नहीं होगा। इसलिए वो कहते हैं जिसमें किसी धर्म की जरूरत नहीं, तो कैसा क्या करें? आना भी पंथ साधो, उल्टा घुमा ले तो मेरुदंड खुले रे तेरे। आना भी पंथ साधो, उल्टा घुमा ले तो मेरुदंड खुले रे तेरे।
काम में लगा है, योग के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, तीर्थ व्रत के द्वारा, परंतु उसमें कितना होता है तो वो जाना। पर जो इस राह का राहगीर बन गया नहीं, तो फिर ये बाजे बजाने की जरूरत नहीं, ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं, क्योंकि ये बाजे हर इंसान के अंदर बजते हैं और हमेशा बजते हैं। इसलिए उस नाद के साथ में, उस अनहद के साथ में जो इंसान जुड़ता है वो सच्चा गुरुमुखी है, वो सच्चा मर्मी है, वो सच्चा भेदिया है। और इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, इस मन मंदिर में बाजता, तो बाहर सुने तो क्या होगा, नहीं। इसलिए आगे यूं कहा है, बात है वो हर इंसान के अंदर हमेशा बनता है। और इसका एहसास करने के लिए किसी तिथि की जरूरत नहीं है, किसी दिन की या दिशा की जरूरत नहीं है। ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम इस तिथि में हैं या इस दिशा में करना चाहिए या उस दिशा में करना चाहिए, नहीं। उनने सबको नकारा कर दिया, पर फिर भी हम कर रहे हैं। अब देखो हम कितने बड़े कबीरपंथी हैं कि नहीं है, जिसका निर्णय खुद करें। इसलिए कहा है ये हमारा जो कुनबा है उसको हमने सीमा में बांध दिया, जबकि वो कहते हैं कि बिन बस्ती का देश है ये। इसकी कोई हमने सीमा बना रखी है, परंतु वो इस सीमा से भी अलग है, क्योंकि शरीर में जब तक वो सीमित है, परंतु शरीर से निकलने के बाद उसका कोई सीमा नहीं है और वो केवल जरिया है शरीर। इस वजह से वो इस बस्ती का हम कहने लगे कि हम इसमें हैं या ये वो है या वो है। इसलिए कहा है
गुरु महाराज इसको बिल्कुल ही कम कर दो, क्योंकि जब सदगुरु कबीर इस तरह का संदेश आप और हम सबके लिए कहते हैं, पूरे मानव मात्र के लिए कहते हैं, तो वो ये कहते हैं कि जहाँ अमृत का झरण होता है, जहाँ और अमृत है प्रेम की वाणी, अमृत बूंद संतों की वाणी है, ऐसा भजन में आता है। और जो संतों की वाणी को जो आत्मसात करके व्यवहारिकता में लाता है वो अमृत पीता है, ऐसा कहा। और पता नहीं है अमृत और दूसरा है कि नहीं, ये हमने तो देखा नहीं, क्योंकि जिन्होंने उस संतों की वाणी को आत्मसात करके व्यवहारिकता में ले लिया ना, वो अमर हो गए। इसीलिए कहते हैं कि अमृत जो पीता ना वो अमर हो जाता है। तो सदगुरु कबीर साहब या बुल्ले साहब को ले लें, गुरु नानक साहब को ले लें, गरीब साहब को ले लें, जलाराम बापू को ले लें, जितने भी संत हुए वो जिंदा हैं, क्योंकि उन्होंने अमृत पिया। और अमृत पीवे ते जना जिन्हें सदगुरु लगा काम, जिनको सदगुरु का काम लगाना, जिनके कानों में सदगुरु के शब्द लग गए, बस वो अमर हो गया। पर कब? जब पिया तब, क्योंकि अमृत ही नहीं पिया तो फिर क्या? यदि अमृत कोई बताता रहे और उसको पिए नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? नहीं। तो इसलिए संतों की वाणी को व्यवहारिकता में लेने की जरूरत है, उसका प्रैक्टिकली अनुभव करने की जरूरत है। और सदगुरु कबीर का हर पद, हर साखी, हर शब्द उनका एहसास है, उनका प्रैक्टिकली अनुभव है। और वो जो उनका अनुभव वो आप और हम सबके जीवन में भी है, बशर्त यह है कि उस स्तर से अपन गुजरने का प्रयास करें, उस स्तर से बहने का प्रयास करें। और ये तब होगा जब कोई ऐसी चोट लग जाए, तब जब चोट लगेगी नहीं तब इधर आएंगे। जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक हम बाहर रहेंगे। और बाहर रहने का मतलब होता है पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, जप तप, इधर उधर, ये। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं करें, करें। जिनको अच्छा लगे तो खूब करें, दिन में 50 बार करें, कोई बुरी बात नहीं। परंतु उधर से जब तक इधर नहीं पलटे तब तक होता ज्ञान है, एहसास नहीं होगा, ऐसा संतों ने कहा। क्योंकि वस्तु कहां ढूंढे कहां ने कहीं भी दिया आवे हाथ, और वस्तु ठिकाने पाई जब भेद ही लीजिए साथ। तो भेद तो आप और हम सबके अंतर में है, वो रहस्य, वो मर्म, वो अनुभव सबके अंतर में है। और उस अनुभव को यदि हम बाहर खोजेंगे तो कैसे मिलेगा? ये चिंतनीय विषय है, विचार करने की जरूरत है। इसलिए हम जिस तरह से आज आप और हम सब इस राम कबीर मंदिर के इस परिसर में हैं, क्योंकि ये मंदिर था तो यहाँ पर है, और यदि मंदिर नहीं होता तो यहाँ इकट्ठे नहीं होते। तो उसी तरह से इस मंदिर में जब तक नहीं आए तब तक इस मंदिर के अंदर का एहसास यहाँ आने के बाद में हुआ, उसी तरह से इस मंदिर में जाने के बाद इस मंदिर के अंदर क्या है उसका एहसास होगा। इस रंग महल में जब तक इंसान नहीं आए तब तक हम बाहर घंटी बजाते रहेंगे, बाहर पूजा पाठ करते रहेंगे और जमाने भर की गतिविधियां करते रहेंगे। ठीक है, वो जरिया शुरुआती हो सकता है। जिस तरह से बच्चों को स्कूल में भेजते ना पढ़ने के लिए, तो वो ए अनाराम ABCD सब कुछ सिखाते हैं। और आप जैसे लोग जिन्होंने पता नहीं क्या क्या MBA ने IIT ने सब कुछ कर लिया, और ऐसे लोगों को यदि हम कहें चलो अनाराम से पढ़ो या ABCD पढ़ो, अब उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो शुरुआती दौर था, वो था, हो गया वो। तो इस वजह से सदगुरु कबीर का वो ज्ञान है, वो नॉलेज है जो IIT और ये किया। तो सब आप तो IIT करे लोग हैं, फिर अब तो कम से कम ABCD में मत पढ़ो। इसलिए इस रंग महल में आने की बात सदगुरु कबीर एक बार में इस तरह से कहते हैं। और वो ये जो शरीर है ये उसकी सेज है। इस मंदिर के अंदर, सच्चे इस मंदिर के अंदर वो सदगुरु, वो परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु रहता है, जो यहाँ पर वो है। ये शरीर उसकी सेज है, वो सेज को उपभोग करने वाला है। तो इस वजह से, और वो निर्गुण है, उसको पकड़ नहीं सकते।
और वो इसमें बंधा हुआ भी नहीं है। इसीलिए इस भजन में कहा था कि बिन बस्ती का देश, यानी वो इसमें है परंतु वो इसकी बस्ती नहीं है। आप और हम सब यहाँ रह रहे तो कहते कि हम अमेरिका है या पाकिस्तान है या हिंदुस्तान है या फलाना है, परंतु ये तो मुसाफिर है, मुसाफिर। कुछ दिन रहेंगे चले जाएंगे, इसमें रहने वाले सब चले गए और अपन भी चले जाएंगे। तो इसी तरह से इसके अंदर भी वो इस बस्ती का वासिंदा स्थायी नहीं है। यदि स्थायी होता तो ठाकुर साहब के या ठाकुर जी भाई के अंदर से निकलता नहीं, या इसके अंदर से निकलेगा नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि इस रंग महल में, इस अजब शहर में आचार्य हंसाबाई निर्गुण राजा ने, इसके अंदर रहने वाला जो राजा है वो निर्गुण है, जो सबका एक है। ये सगुण सेज बिछाएगी। और इसका ऐसा तब होगा जब हम इन हदों से ऊपर उठेंगे। और हद कौन सी हद? हम पंखे चल रहे हैं, मैं आंख से देख रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि पंखे चल रहे हैं, आंख केवल देख रही है, परंतु हदों का निर्धारण आंख ने नहीं किया, इधर से किया। इसलिए यहां से थोड़ा सा ऊपर उठे। तो जब तक इंसान इस हद में रहेगा तब तक देखेगा कि इन्होंने ऐसी साड़ी पहनी, इन्होंने लाल कपड़ा पहना, इन्होंने ये बल्ब जल रहा है, माइक फलाना सब कुछ। और जब इससे थोड़ा सा ऊपर उठे तो फिर वहां ना माइक है, ना ये है, ना वो है, ना कुछ नहीं है। वहां पर केवल क्या होगा वो आप जाने। इसलिए देखिएगा कबीर कहते हैं कि इस शेर को, इस इशारे को हम कैसे समझ सकते हैं अपने अंतर की यात्रा में करने पर, या इस रंग महल में आने पर, या इस अजब शहर में आने पर, या इस मंदिर में आने पर, या इस मस्जिद में आने पर। कहा है इस घट में यो घट पाइया सबके, इस घट में यो घट पाइया में ओ घट नहीं धार, सभी संशय मिट गया जब गुरु दिखाई बात। जब गुरु ने रास्ता दिखा दिया तो सब संशय, सब हमारा भ्रम, सब नासमझी दूर हो गई। और जब नासमझी दूर होगी नहीं तो उसको ये सभी भगवान ही दिखेंगे, अल्लाह ईश्वरी दिखेंगे। उसको सब वन, जितने भी वन है नहीं, तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, दूसरी तरकट में क्या है, दूसरी वनस्पति में भी तो वही है। तो वो उसको फिर सब वही दिखेगा। गंगा पूजनी और उसको बहुत आदरणीय गंगा मानी जाती है, नदी मानी जाती, वो तो सब नदी में वही है, उसको ये नूर दिखेगा। तो इसलिए कहा है सब बन तो तुलसी भया, सब बन तो तुलसी भया, पर्वत सालग और सब नदियां गंगा भई, जब जाना आत्म राम। आप सबको मैं इसलिए भी साधुवाद ज्ञापित करूं क्योंकि आत्म की पूजा आप सब करते हैं। पहले सबसे पहले आपने आत्म की पूजा करवाई, वही पूजा है सच्ची। कबीर साहब खुद कहते हैं कि आरती कीजिए आत्म पूजा, कहीं कबीर जैसे देव नहीं पूजा। तो पहले पेट पूजा ने फिर काम पूजा। तो हमने सबको पहले आत्म की पूजा करवा दी, बस हो गया भजन ना। तो इसलिए उस आत्म की पूजा करने के लिए ये जब जिसने आत्म राम को जान लिया नहीं, फिर वो राम की पूजा करता रहे, परंतु वो आत्म राम की भी पूजा करेगा। और जब यदि हम इन राम की भी पूजा करते रहे और इन आत्म राम की पूजा यदि नहीं करें, इनकी पूजा करो और इनको यदि काट दें या इनके साथ दुर्व्यवहार करें, तो फिर इधर की पूजा कैसी होगी आप जानते हैं, सार्थक है क्या? इसलिए कबीर कहते हैं कि जिनने आत्म राम को जान लिया नहीं, फिर वो ये नहीं कहेगा कि ये राम खराब है, या ये राम की पूजा मत करो, या ये अल्लाह की पूजा मत करो, या ये भाई गुरु की पूजा मत करो। नहीं, वो जानता है। इसीलिए यीशु को जब सूली पर टांगा गया नहीं, तो उसके बाद में उनको दंड देने के लिए कहा था, बोला कि इनको छोड़ दो, ये जानते नहीं है। देखिएगा ये समझ, क्योंकि उनको ये भी मालूम था कि ये जो कर रहे हैं वो भी वही है। नहीं, इसलिए इस रंग महल में आ जाए।
बढ़िया तू क्या घंटी बजा रहा है, संग बजा रहा है, जिनके लिए तू बजाना नहीं मानो है ही नहीं। अरे हारे भाई उड़ा मलरिया में देव नाही जला रे फुटे जरत करी वो थारा रंग महल में अजब शहर में आजा रे हंसा भाई त्रिभुवन राजा के त्रिभुवन से बिछाई त्रिभुवन से बिछाई। इसलिए इन हदों से ऊपर उठे, जाति की, धर्म की, पूजा की, पाठ की या और अनेक प्रकार की। इसलिए हारे हारे भाई बेहद की तो गम नहीं नूग राते से कसी। हारे हारे भाई बेहद की तो गम नहीं नूग राते से कसी। वो थारा रंग महल में अलग शहर में आजा रे हंसा भाई त्रिभुवन राजा पे त्रिभुवन से बिछाई त्रिभुवन से बिछाई। इसलिए जो इन हदों से ऊपर उठा उसने सभी को प्रेम और सद्भाव का अमृत रूपी प्याला सर्वांगसम स्थिति में पिलाया। इसीलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि हद में पीव न पाइया और बेहद में भरपूर और हद बेहद की गम लखे सुखी वजूद। इसलिए इन हदों से ऊपर उठे जिसमें वो नूरानी वो जिसको कहना चाहिए वो लाली वो रूहानियत सबके अंदर जो फैली हुई है उसका एहसास। हारे हारे भाई अमृत प्याला भर पाओ भाई लासे रात की। हारे हारे भाई अमृत प्याला भर पाओ भाई लासे रात की। वो थारा रंग महल में अलग शहर में आजा रे हंसा भाई त्रिभुवन राजा के त्रिभुवन से बिछाई त्रिभुवन से बिछाई यहाँ यहाँ त्रिभुवन से बिछाई। अंतिम में सद्गुरु कबीर कहते हैं ये तब होगा जब हम उन इशारों को समझ जाए जो सद्गुरु कबीर ने भजन में कहा। सेंड में सेंड मिली, सेंड में सेंड मिला। हारे हारे भाई तय कबीर विचार सेंड माई सेंड मिली। हारे हारे तय कबीर विचार सेंड माई सेंड मिली। वो थारा रंग महल में अलग शहर में आजा रे हंसा भाई त्रिभुवन राजा के त्रिभुवन से बिछाई त्रिभुवन से बिछाई त्रिभुवन से बिछाई यहाँ यहाँ त्रिभुवन से बिछाई। सद्गुरुदेव इस तरह से यदि ये आप और हम सबका शरीर रूपी सगुण सेज नहीं होता तो हम बात कैसे करते। इसलिए इसकी जरूरत है। और इसीलिए सद्गुरु कबीर एक जगह पर कहते हैं कि निर्गुण रूपी है मेरे दाता और सिरगुण नाम धराई और मन पवन दोनों नहीं पहुंचे उन्हीं देश का माई हम परदेसी पंछी साधु इन्हीं देश का नहीं। तो इसलिए सगुण की जरूरत है परंतु सगुण ही सब कुछ नहीं है, उस सगुण को चलाने वाला सब कुछ है। शरीर है परंतु इसके अंदर से जो एक सुप्रीम कला जो है, जो एक
यथार्थ जो कला सबके अंदर एक है वो यदि थोड़ी सी निकल जाएगी नहीं तो ये इस शरीर की सुंदरता और ये वैभवता यहीं की यहीं धरी रह जाएगी, सब जानते हैं। और इसी बात को सदगुरु कबीर चेताते हुए कहते हैं कि 5 तत्व का पुतला और मानुष धरिया नाम, एक कला के एक जो सबके अंदर एक जैसी है, एक कला के बिछुड़ते बिसर गया सब ठाम। इसके अंदर जो एक कला है वो जैसे ही निकल जाएगी नहीं, और वो कला कौन सी, जो अंदर जा रही है या जो बाहर निकल रही है, केवल उसी को हम थोड़ा सा सोच लें। श्वास यदि अंदर गई ना बाहर नहीं निकली तो, और यदि बाहर निकल गई ना अंदर नहीं आई तो ये कला, और ये कला का मजहब नहीं होता। इस कला को हम धर्म में नहीं बांध सकते, इस कला को हम जाति संप्रदाय या स्त्री पुरुष में नहीं बांध सकते, क्योंकि वो पूर्ण पुरुष है, वो सबका एक है। इसलिए पूर्ण पुरुष सबका एक होता है, वो स्त्री पुरुष नहीं होता। तो इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं कि पूर्ण पुरुष हमारा, तो इसलिए वो पूर्ण पुरुष का संरक्षण, उसका एहसास हम इस शरीर के मार्फत कर सकते हैं, माध्यम है शरीर। तो इसलिए जब इस शहर में, इस अजब शहर में, इस रंग महल में, इस मंदिर या मस्जिद में आ गए तो सही रूप से इबादत होगी, सही रूप से उसकी पूजा अर्चना और आराधना होगी। तो इसलिए कबीर साहब भी कहते हैं कि यार तू इधर आ जा, इधर उधर कहाँ भटक रहा है। और यदि बाहर भटक रहा तो समझेगा कि उन्होंने तो ये कह दिया कि वो तो पता नहीं दुकानदारी भी हो सकती है। क्योंकि कहते हैं मंदिर में तो बुद्ध बसता है, मस्जिद में सफम सफाई है, और दिल दरगाह को खोज ले प्यारे, धलकता नूर खुदाई है। उस खुदा का और से ईश्वर अल्लाह का जो नूर है वो सबके अंदर समान रूप से झलकता है, पूर्ण रूप से व्याप्त है, रत्ती भर भी किसी में कम ज्यादा नहीं है। इसलिए इस मंदिर में ढूंढो उस खुदा को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह वाहिगुरु को। इसलिए वो कहते हैं कि तू मंदिर में कहीं ढूंढती फिर हमारी हेली, तू काशी मथुरा द्वारका फलाना सब तू वहां काम ढूंढ रहा है, ये तेरा सच्चा काशी मथुरा तो शरीर है। इसलिए भजन में कहा है यदि मन मथुरा दिल द्वारका, तेरा मन मथुरा दिल द्वारका, अरे मन मथुरा दिल द्वारका, और काया काशी जान, तेरा दर्श द्वारका पिंजरा, अभी आरती करी अपन ने जोत जलाई, वो इस बात का सिंबल है, इस बात का संकेत है कि वो जोत हर इंसान के अंदर हमेशा जल रही है। तो इधर भी तो देख, सच्ची इबादत तब होगी जब इधर के दिए से अंतर के निर्गुण की हम आरती कर लें, परंतु सिखाने के लिए ये करना पड़ेगा। यदि कोई देखेगा नहीं तो वो क्या करेगा, इसलिए कर रहे हैं तो करो, खूब करो, परंतु सच्ची आरती वो है। इसलिए वो कहते हैं कि तू मंदिर में कहां ढूंढ रहा है, मंदिर में कहीं ढूंढती फिर हमारी हेली, ए सहेली, ए प्रेमी, तू उसको मंदिर में कहां खोज रहा है। वो तो घट घट में बैठा है, घट घट में राम जी बोले रहे, वो राम जिसको खोजने के लिए इधर उधर ढूंढ रहे हैं, या मंदिर में बिठा करके जगह जगह पर पूजा पाठ हो रही है, अच्छी बात है करे, परंतु सच्चा मंदिर तो ये है जहां पर राम बैठा हुआ है। और कबीर साहब ने जिस राम की बात करी ना, वो है, वो आकार वाला राम नहीं था। वो खुद कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा, तीसरे राम का सकल पसारा, और चौथा राम सभी से न्यारा। जिस राम को सगुण के रूप में जो मानते हैं माने, परंतु उन्होंने कहा कि मैं भी राम को मानता हूं, परंतु मेरा राम और तुम्हारा राम हो सकता कुछ फर्क है। वो राम जो सबका है, आकार राम, किसी का आकार रूप में जब है तो वो आकार राम है, दशरथ का बेटा। आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार घट घट में बैठा, और बुंद राम का सकल पसारा, और निरालम सभी से न्यारा।
जिस राम की आराधना करना हो करो, अच्छी बात है, क्योंकि रग रग में राम जी बोल रहा है। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि मंदिर में तो उसको कहां ढूंढ रहा है, वो तो सब घट में बोल रहा है। इस तरह से कहा है। या जिनको मंदिर में जाने का था वो तो उनको मिल रहे थे शायद, और ऐसे लोग जिनको मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा था तो बेचारे वो फिर क्या करें। तो उन्होंने कहा कि 5 बजे तो मत जाए, मत भागे। सब घर में बोला तो इधर ही आ जा, इसलिए भी हो सकता कहा हो। क्यों? या मूर्ख और मंदिर में मेरी भगवान बड़ा सगीना बोली है जी, मूर्ख और मंदिर में मेरी ना बोली भाई भाई, बाप थोड़ा से कभी ना बोली। ये दीवान को दरवाजे ठाड़ा, वाका दीवान को दरवाजे ठाड़ा, हे बिना हुक्म कुल खोले नी, हाँ बिना हुक्म कुल खोले यहाँ पर होने की जरूरत है। ऐसी जगहों पर है जहाँ पर आप और हम सब इकट्ठे होते हैं और संतों की वाणी में परखने की जरूरत है। यहाँ राम नाम की हर मन चाहे तो ले लो, यहाँ गुरु नाम की बाढ़ बिजली, हर दिल चाहे तो ले लो, हम मन चाहे तो ले लो। तो समझेगा कि उसमें निर्मलता आएगी, वो उस संतों की वाणी के जल में स्नान करके पवित्र हो जाएगा। और वो जल कहाँ का? गंगा का, यमुना का, गोदावरी का, कृष्णा का, कावेरी का, जो भी ये ना पानी। तो हमारे अंदर वो गंगा नदी किधर बह रही है, इसके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से हिमालय से या पर्वतों से नदी निकलती है, तो इधर इस पर्वत इसमें वो कहाँ से निकलती है? तो वो ये कह रहे हैं गंगा निकली, कपड़ा धोई
से नहीं निकलेगा, आप सब जानते हैं। वो केवल गुरु की सेंट से, वो केवल संतों की वाणी और उनके एहसास से जो अंतर में हो सकता है सबके अंदर, तभी कहीं नहीं निकलेगा। इसलिए उस साबुन को लेने की जरूरत है, एक सही दिशा की साबुन लेने की जरूरत है। इसलिए कहा है और उसकी खोज इधर ही करना है, क्योंकि सच्चा बाजार इधर लगा है और उस बाजार में से हीरे को चुनने का मर्म भी आप सबके पास में है, क्योंकि विवेक सबको दिया है। और जो शब्द का विवेकी है वो सच्चा खोजी है, वो सच्चा भेदी है, वो सच्चा पारखी है, ऐसा सदगुरु कबीर कहते हैं। इसलिए कहा है